what we did yesterday was कि we talked about acids. कि मैंने कहा था कि acids पहले तो हमने वो थोड़ा सा background किया था कि acids proton donors है और bases proton acceptors है. And what would happen is कि why was that important? क्योंकि water was important. Water was everywhere. There was H+1 and OH ions everywhere. ठीक है, water is the main medium. तो acids वो molecule होते हैं which produce H+1 ions. So what happens is कि the amount of H+1 increases in acids. और bases के अंदर they reduce the amount of H+1 ions or vice versa, they increase the amount of OH ions. तो bases H+1 ions कम कर देते हैं water का balance. तो water के अंदर pH का मतलब ये होता है 7 means के both ions are present in equal quantity. Less than 7 means H+1 ज़्यादा है और greater than 7 का मतलब है कि H+1 कम है. और हर रिएक्शन डिपेंड करता है पीएच के ऊपर. और हमने एसिड्स के नाम किए थे, लिस्ट वगैरह उनके फॉर्मूलाज किस तरह बनते हैं. वी स्टडी दैट. वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वी टॉक्ड अबाउट वीक एसिड्स एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बेसिस. के व्हाट वर बेसिस? के बेसिस वर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स. के दे वुड गेन H+O ions or vice versa, they would produce OH ions. And which compounds were bases? You had O minus 2, which were bases, OH minus 1 and CO3 minus 2. They would all accept H+O ions. और वो water के अंदर convert हो जाता है. O minus 2 gains H+1, gets converted to water. OH minus 1 does exactly the same, gets converted to water. CO3 minus 2 also accepts H+O ions. And उसके अंदर O minus 2 accepts H+O ions to form water, and what is left is CO2. The bases were metal oxides, metal hydroxides, and metal carbonates. So now, based on this, We're going to start with our first reaction. ठीक है? And remember, there would be uh, approximately 5 reactions, which we're going to study one by one. Starting with the first one, the very first one. That reaction is it's a metal reacting with an acid. It produces salt and hydrogen gas. So metal plus acid, it produces salt and H2 gas. That's the first reaction that we will talk about. About this reaction, ठीक है, और इसके साथ लिख देते हैं. This is the first one. Make sure. अच्छा, metals का ये कि metals react with acids, लेकिन not all metals. ठीक है, some metals are too reactive. Are too reactive and explosive. These are group 1 metals है. And then there are other metals which are too unreactive. So some metals are either too reactive or explosive. Group 1 sodium वगैरह, they are very, very reactive. And some metals are too unreactive. Gold is an example. ठीक है, ये डिटेल जो है ना रिएक्टिविटी सीरीज और ये सारा, ये तो हम अलग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, नॉट राइट नाउ. तो सम मेटल्स आर टू अनरिएक्टिव लिखना था. सो दे आर टू अनरिएक्टिव और उसकी एग्जांपल में गोल्ड वगैरह आ जाता है. नाउ द थिंग इज कि इसके बारे में याद रखना है कि रिमेंबर दिस थिंग, स्पेशली फॉर ओ लेवल्स. रिमेंबर दिस वर्ड मैजेट. मैजेट का मतलब है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड टिन. ईच लेटर स्टैंड्स फॉर अ पर्टिकुलर मेटल. तो these metals have moderate reactions. मतलब आप safely college laboratory के अंदर ना you can perform the reactions. So these metals have moderate reactions. यानी if you add iron to an acid, तो reaction होगा और normal तरीके से होगा, not too fast, not too slow. तो मैजेट याद रखना. लैब के अंदर ना यूजुअली यू यूज मैजेट मेटल्स, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड टिन. ग्रुप 1 के मेटल्स नहीं यूज करोगे, दे वुड बी वेरी एक्सप्लोसिव. ठीक है, एंड डेंजरसली एक्सप्लोसिव. गोल्ड नहीं यूज करोगे क्योंकि उसको रिएक्ट करते करते इट वुड टेक एजेस. ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लग जाएंगे, इट वोंट रिएक्ट.
तो इस वर्ड का ना ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा, एनीवेज कमिंग बैक, ये पॉइंट क्लियर है अहमद? इज दिस क्लियर? यस। ठीक है। नाउ the equation, ठीक है? I'm going to focus on the equation. Metal plus acid produces salt plus H2. So let's take magnesium. Acid हम ले लेते हैं hydrochloric acid HCl, and it's going to produce a salt and an H2 molecule. Now the question is, what is the salt that would be produced? Every time the salt is going to be produced in exactly the same way, which is कि H हटाओ, ठीक है? Acid would get neutralized और उसकी जगह Mg आ जाएगा, ठीक है? Mg is going to knock out the H and take its place. Uh, so what would be formed? It's going to Mg is going to come in और H की जगह ले लेगा, ठीक है? तो MgCl बनेगा। अब जो भी बनेगा ना, मेक श्योर कि उसका फॉर्मूला ठीक कर लो। फॉर्मूला क्या? क्रिस क्रॉस। कि Mg is group 2, so it's +2, Cl is -1. So the formula is going to be, if you do crisscross, it would be MgCl2. अभी इसकी टेंशन नहीं लेनी कि where did the second Cl come from, ठीक है? Remember crisscross formula आपने बनाना है. Make sure the first thing is कि when you write an equation, you have to get the formulas right. So every time, uh, this is how salts are going to be produced. The H in the acid gets replaced by any other positive ion. और मैं explain कर देता हूँ salt briefly. Okay, what's a salt? Okay, a salt is a neutral compound, first thing. So it's a neutral compound. What does that mean? It means कि अगर आपका water होगा ना, if you add a salt, तो water के अंदर ना H+1 और OH ions का जो balance होगा ना, उसको disturb नहीं करेगा, ठीक है? It's not going to produce H+1 और OH ions. ना वो कम करेगा, ना वो ज़्यादा करेगा. Nothing should happen to the quantity of ions of H+1 and OH ions if you add a salt to it. और वो obvious है क्योंकि salt के पास दोनों ions ही नहीं है. मतलब MgCl2 को अगर पानी में डालोगे तो ना कहीं से H+1 आएगा, ना कहीं से OH ions आएंगे, ना कहीं से H+1 कम होंगे, ठीक है? It doesn't have any of those ions. So salt is a neutral compound, which is formed when an acid is neutralized. सर ये अभी आपने क्या बताया, सही समझ नहीं आया। नहीं, मैं वो कहता था ना कि एसिड क्या करता था अहमद? सर एसिड गेन। नहीं, कौन सा आयन प्रोड्यूस करता सॉरी था? सर। एसिड कौन सा आयन प्रोड्यूस करता था? H+। तो एसिड H+1 प्रोड्यूस करता था ना, तो पानी के अंदर H+1 आयन्स ज्यादा हो जाते थे, ठीक है, वाटर के अंदर। और बेस क्या करता था? H+1 कम करता था या वाइस वर्सा, OH आयन ज्यादा कर देता था, ठीक है? जी। तो एसिड H+1 क्यों प्रोड्यूस करता था? क्योंकि एसिड के पास H+1 आयन्स होते थे ना उसके फॉर्मूले में, तभी वो प्रोड्यूस करता था ना, ठीक है? हाँ जी। तो अब मुझे बताओ कि MgCl2 है, उसके पास तो H+1 है ही नहीं, तो वो एज एन एसिड तो बिहेव नहीं कर सकता ना। मतलब MgCl2 को पानी में डालोगे तो ये गारंटी है कि H+1 आयन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि उसके पास H+1 आयन्स है ही नहीं। क्लियर है? जी। प्लस ना, यानी वो कुछ भी नहीं करेगा, वो ना H+1 को छेड़ेगा, ना OH आयन्स को छेड़ेगा, ना H+1 कम करेगा, क्योंकि इट्स नॉट अ बेस। H+1 गेन कौन करता था? O-2, OH-1 या फिर CO3-2, राइट? तो इसके पास वो भी नहीं है, यानी इट डजंट डिस्टर्ब H+1 एंड OH आयंस, इट्स अ न्यूट्रल कंपाउंड। यानी वो पानी की जो कॉम्पोजिशन होगी ना, और उसमें जितने भी H+1 और OH आयंस होंगे, उनको वो कुछ भी नहीं करेगा। अहमद, क्लियर है? लेकिन सर मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस है, उसके साथ भी नहीं रिएक्ट करेगा। नहीं करेगा ना, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है? तो मतलब MgCl2 वुड नॉट डू एनीथिंग, ठीक है? इट्स अ सॉल्ट कि वो पानी में जाके आयंस प्रोड्यूस करेगा, Mg आयंस प्रोड्यूस करेगा, Cl आयंस प्रोड्यूस ओह करेगा, ओके। ठीक अच्छा, है? मैं सर हाल ही मैग्नीशियम का समझ रहा था, MgCl2 की बात। अच्छा, ठीक है। जी। अच्छा, anyways, so the reaction is कि salt is a neutral compound which is formed when an acid is neutralized. Acid neutralize करने का क्या मतलब है कि acid में से अगर आप H खत्म कर दो तो वो फिर as an acid act नहीं कर सकता।
क्योंकि एसिड का काम था H+ आयंस प्रोड्यूस करना। जब Mg ने आके H को हटा दिया तो मतलब इट्स नो लॉन्गर केपेबल ऑफ एक्टिंग एज एन एसिड, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो गया। जब तक उसके पास H था तब तक वो एज एन एसिड एक्ट कर सकता था। तो दैट्स हाउ सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, व्हेनेवर एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड। तो ये मैंने पहली इक्वेशन, सॉल्ट का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, ठीक है, हमेशा एसिड से ना सॉल्ट का फॉर्मूला बनता है। लेट्स डू अनदर वन के आई हैव एल्यूमिनियम and it's reacting with HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेम रिएक्शन। तो व्हाट्स गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड कि Al आएगा मेटल और वो H को नॉकआउट कर देगा, ठीक है, उसकी जगह आ जाएगा। सो व्हाट्स गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इज Al और Cl, राइट, के H की जगह ना Al आ जाएगा। प्लस द अदर थिंग दैट्स ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इज हाइड्रोजन गैस। इस सॉल्ट का फॉर्मूला बस वो क्रिस क्रॉस करके ना दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम इज ग्रुप 3 सो इट्स +3, NCl इज ग्रुप 7 जो होता है -1 होता है। तो अगर आप इसका फॉर्मूला बनाओ तो इसका फॉर्मूला क्रिस क्रॉस करने के बाद बनेगा AlCl3, राइट। तो दैट वुड बी द सॉल्ट दैट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। ये सारों को क्लियर है? जीनिया, इज दिस क्लियर? मुर्जा क्लियर है? जी सर। ठीक है। जी सर। तो हर दफा सॉल्ट इसी तरह बनेगी कि एसिड का जो H है ना उसको आपने हटाना है और उसकी जगह जो भी मेटल वगैरह है वो उसकी जगह आ जाएगा, ठीक है, तो आपके पास सॉल्ट बन जाएगी। एंड दैट्स योर फर्स्ट रिएक्शन, मेटल प्लस एसिड प्रोड्यूसेस सॉल्ट प्लस H2। द अदर थिंग इज कि आपने बैलेंस करना है। अच्छा रिमेंबर, पहला काम जब भी इक्वेशन बनेगी ना, मेक श्योर कि खैर चार्जेस आप लिखते नहीं हो फॉर्मूलाज के अंदर तो वो हम हटा देते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपने फॉर्मूलाज बनाने हैं। आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पे 3Cl किधर से आ गए हैं, ठीक है, वो आपने इसका फॉर्मूला बनाना है, वो क्रिस क्रॉस करके आपने बनाना है। बैलेंसिंग वाला काम है वो आखिरी काम होगा। बैलेंसिंग किस तरह करते हैं कि आपने किसी का भी फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। MgCl2 है तो उसको MgCl3 नहीं बना देना, ठीक है। H2 है तो उसको H3 नहीं कर देना, ठीक है। तो इसलिए मैं इनके ऊपर ना वो बॉक्सेस डाल दिए। आप बस इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे कितने Cl है? 2 Cl है। तो यहाँ पे क्या करोगे, HCl के मॉलिक्यूल्स को डबल कर दो तो Cl बराबर हो जाएंगे, दैट्स इट। हाइड्रोजन एक ही थे तो वो आपने डबल कर दिया, तो वहाँ पे इधर भी 2 है और उस साइड पे भी 2 है। सो एवरीथिंग एल्स इज नाउ बैलेंस्ड। ये वाला कर लेते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन जो है थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल है। मुझे पहले बताओ कि किसको मैं मल्टीप्लाई करूं किसी नंबर से, फॉर्मूला नहीं छेड़ना बस किसी का। एनीवन, कौन सी चीज अनबैलेंस नजर आ रही है? हाइड्रोजन और तो Cl। ठीक है, तो किसको करें? अगर हम Cl को करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे कितने Cl है? 3 है, 3 है जी। इधर एक ही है। सो देयर वुड बी, दिस वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो Cl हो गया बैलेंस। एल्यूमिनियम तो पहले ही बैलेंस्ड है कि दोनों साइडों पे ना दिस एक एक एल्यूमिनियम है। हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। हाइड्रोजन को किस तरह बैलेंस करेंगे? दिस कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन ओवर है। तो इसको मैं बताऊं, वैसे बताओ, इवन डेसिमल्स में जाना पड़े डेसिमल में चले जाओ, किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पे 3 हो जाए? 3 से। मतलब अगर मैं 3 से करता हूँ तो ये 6 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। तो तो फिर सर उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 6। हाँ जी, इसको 6 कर देते हैं, लेकिन वो फिर Cl 6 हो जाते हैं तो तो फिर 2 लगा देंगे। फिर वो एल्यूमिनियम डबल हो जाते हैं, तो एल्यूमिनियम को 2 कर दो, ठीक है। अच्छा जी एनीवेज, द पॉइंट इज कि फॉर्मूला जब एक दफा बनेगा ना, मतलब पहले आपने बैलेंसिंग नहीं करनी, आपने फॉर्मूला क्रिस क्रॉस करके बनाना है, ठीक है, दैट्स इट। उसमें अब 3 Cl आते हैं, 4 एल्यूमिनियम आते हैं, जो मर्जी आए, ठीक है, दैट्स द फॉर्मूला। फॉर्मूले को आपने चेंज नहीं करना, इसको AlCl3 से AlCl4 नहीं कर देना। फॉर्मूला जो होगा जब एक दफा बनेगा दैट वुड बी लॉक्ड। H2 जो होगा वो H2 रहेगा, सारी जिंदगी H2 रहेगा। बस उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो कि 3 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है। तो
बैलेंसिंग करते हुए डोंट mess with the formulas, ठीक है? That's number one. एक और इक्वेशन कर लेते हैं. Let's say I have magnesium plus phosphoric acid. तो magnesium plus phosphoric acid is H3PO4. मैग्नीशियम ग्रुप 2 में होता है. कोई मुझे बताए कि सॉल्ट क्या बनेगी? H2 गैस लाजमी बनेगी, मेटल प्लस एसिड. व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट? किस तरह बनेगी सॉल्ट? कोई एक बता दे. मान लो सॉल्ट किस तरह बनेगी, क्या फॉर्मूला होगा? कि आपने क्या करना है मास? सर मैं जी सर वो मतलब एच हटाना है एसिड का, उसकी जगह क्या लेके आ जाना है? Mg. तो फॉर्मूला क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी Mg और PO4. PO4. अब वो आयंस की लिस्ट है. Mg ग्रुप 2 में, दैट्स 2 प्लस, राइट? PO4 पे याद है कि क्या चार्ज था? -3. ठीक है, दैट इज -3. तो फॉर्मूला वुड बी, जीने क्या फॉर्मूला होगा? सर जो आपने लिखा हुआ है नहीं, वो क्रिस क्रॉस करने के बाद Mg3. Mg3PO4 और फिर 2. ठीक है, PO4 ट्वाइस. तो Mg3 PO4 ट्वाइस होगा. ठीक है, दैट्स व्हाट द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी. और बस एक दफा बस फॉर्मूला बन गए तो अब अगला काम होगा कि बैलेंसिंग करनी है. तो किसी का भी फॉर्मूला, इनको बस मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू सी दैट्स अनबैलेंस्ड इज Mg. यहाँ पे कितने हैं? 3 है. तो इधर भी 3 होने चाहिए, तो I'll multiply this by 3. तो Mg is done. अच्छा, फिर what you see is के PO4 को इकट्ठा करके भी कर सकते हैं. PO4 ट्वाइस है, यहाँ पे PO4 एक ही है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से. उसकी वजह से हाइड्रोजन्स कितने हो जाते हैं? There would be, अगर 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो 6 हाइड्रोजन्स होंगे इस साइड पे. तो I would multiply that by 3. तो अब सारी चीजें जो है वो बैलेंस हो गई हैं. ठीक है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, हर चीज बैलेंस हो गई है. इज दिस क्लियर? बुर्ता क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, next I'm going to move to the next equation. Equation number 2 जो बिल्कुल ऐसी है, exactly the same. सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, and that equation is, अच्छा, that equation is कि it's base plus acid produces salt plus water. तो पहली इक्वेशन जो थी that was metal plus acid. Now it's base plus acid. और बेस से हमारी जो रेफरेंस है ना, बेस भी रिफरिंग टू मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स. ठीक है, कार्बोनेट्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं भी मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहा हूँ. और इसके अंदर ना देयर कुड बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज वेल. अच्छा, नाउ दिस इक्वेशन बेस प्लस एसिड. सो यू हैव कोई भी मेटल ऑक्साइड, लेट्स से मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड जो होता है दैट्स OH-1. तो Mg is 2 plus, OH is -1, so it's going to be Mg. और OH जो होगा वो ब्रैकेट्स के अंदर वो ट्वाइस होगा. ठीक है, प्लस एनी एसिड, लेट्स से नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड जो होता है वो HNO3 होता है. अच्छा, क्या बनना चाहिए? सॉल्ट बनना चाहिए प्लस H2O बनना चाहिए. तो हाउ वुड यू फॉर्म द सॉल्ट? सॉल्ट एग्जैक्टली उसी तरीके से बनेगी कि एसिड का जो H है वो हटाओ, उसकी जगह कौन आ जाएगा? मेटल आ जाएगा, Mg आ जाएगा. ठीक है, दैट वुड टेक इट्स प्लेस. तो द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट वुड बी कि Mg और NO3 H हट जाएगा. And Mg is group 2, so it's 2 plus, NO3 is -1. So the formula of the salt is going to be MgNO3 twice plus H2O. ये क्लियर है? जीनी, इज दिस क्लियर? फराज क्लियर है?
जी सर। अच्छा, सो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट्स बैलेंसिंग। चार्जेस तो हम हटा देते हैं, यू डोंट राइट चार्जेस। ये भी वर्किंग अपनी हटा देते हैं, ठीक है। बस रिमेंबर, हर दफा सॉल्ट बनानी है, यू हैव टू जस्ट गेट रिड ऑफ द H, और उसकी जगह ना जो भी मेटल का आयन पड़ा हुआ है या पॉजिटिव आयन पड़ा हुआ है वो उसकी जगह पे फिट कर दो। दैट वुड गिव यू योर सॉल्ट। बस ये याद रखते हैं कि क्लासिफाई करना आना चाहिए कि अगर मेटल प्लस एसिड है, खाली मेटल, तो इट्स गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट प्लस H2। अगर बेस है यानी मेटल के साथ ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है, देन इट वुड बी सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, बैलेंसिंग की कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ, ठीक है। वन इज कि when you're trying to balance this equation and this particular reaction, इन सारों को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली इक्वल हो जाए। तो और वो सोचते हैं कि वो नंबर क्या है। लेकिन there are some heuristics that you're going to use. Number one is, वो मैं explain कर देता हूँ balancing. Number one heuristic is start balancing the easiest first. मतलब ये नहीं कि रैंडमली आप कोई भी एलिमेंट पकड़ोगे और उसको बैलेंस करना शुरू कर दो, ठीक है। स्टार्ट बैलेंसिंग द इजीएस्ट फर्स्ट। व्हिच वन इज द इजीएस्ट? द वन दैट अपीयर्स द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। सबसे कम जगहों पे जो दैट अपीयर्स द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। और लीस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस के अंदर भी वो, that is going to be the easiest. So you have four elements over here. You have magnesium, you have oxygen, you have हाइड्रोजन एंड यू हैव एक और है इसमें नाइट्रोजन भी है, ठीक है। ये चार एलिमेंट्स हैं, इनको बैलेंस करना है। राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो विच वन इज द इजीएस्ट व्हिच इज अपीयरिंग इन द लीस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस? ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन इज ओवर हियर, ऑक्सीजन इज ओवर हियर एज वेल, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी है। तो ऑक्सीजन जो है ना दैट्स इन 4 प्लेसेस। इसका मतलब है इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड टू बैलेंस ऑक्सीजन। ऑल्दो ये इक्वेशन बैलेंस करना आसान है और कुछ लोगों को आती भी होगी, लेकिन ये मुश्किल इक्वेशंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन जो है दैट्स इन 4 प्लेसेस। डोंट ट्राई टू बैलेंस ऑक्सीजन फर्स्ट, ठीक है। वहां पे अगर ऑक्सीजन से स्टार्ट करोगे ना यू विल गेट स्टक। नेक्स्ट इज इफ यू लुक एट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज ओवर हियर, इट्स आल्सो ओवर हियर and it's also over here. It's in 3 places. तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले में बैलेंस करना it's slightly easier but not that easy. अच्छा, 2 places में कौन से आ रहे हैं? मैग्नीशियम आ रहा है। मैग्नीशियम को देखो यहाँ पे है और वो यहाँ पे है, और दोनों जगहों पे एक एक मैग्नीशियम है, वो पहले ही बैलेंस हो गया। और नाइट्रोजन इज इन 2 places, तो नाइट्रोजन को बैलेंस कर लो। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक ही नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, ठीक है। रिमेंबर NO3 के अंदर ना 3 जो है वो ऑक्सीजन के साथ है, नॉट विद नाइट्रोजन, और ब्रैकेट के बाहर 2 हुआ हुआ है, जिसका मतलब है 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, तो इसको आप 2 कर दो, तो यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2। तो आपका नाइट्रोजन जो है ना, जो आसान था, वो बैलेंस हो गया। अब रह गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इजियर कौन सा है? हाइड्रोजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन इज इन 4 प्लेसेस, ज्यादा मुश्किल होगा। तो अगर आप स्टार्ट करते हो तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 2 है, इधर एक ही था लेकिन 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो 2 हो गए, तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। इस साइड पे इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 4 हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन भी हो गया। जो आखिरी चीज है ना वो खुद ही बैलेंस हो जाएगी हमेशा। जो सबसे मुश्किल था, ऑक्सीजन को काउंट करो 2 यहाँ पे, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो टोटल 8 हो गए। यहाँ पे NO3 ट्वाइस है, इसका मतलब है 6 ऑक्सीजन है, और इधर 2 ऑक्सीजन हो गए, तो वो भी 8 हो गए। तो ऑक्सीजन खुद ही ऑटोमेटिकली आखिरी जो होगा ना, जो सबसे मुश्किल होगा, वो मोस्ट ऑफ द टाइम खुद ही बैलेंस होगा, ठीक है। एमएल इज दिस क्लियर? और सर हाँ जी सर। बास क्या क्वेश्चन है? वो आपने हाइड्रोजन को डिसबैलेंस दिया, आखिरी में आपने 2 डाले, 2 2 जा 4, वो बाकी तो 2 2 बच गए। कितने 2 बचे? या Mg के साथ 2 है, HNO के साथ तो
एक सेकंड में आपका बोर्ड किधर चला गया। एक सेकंड रुकना, मैं फिर खोल लूँ। हाँ माज, अब बताओ क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि वो हाइड्रोजन को आप चेक करें तो बैलेंस नहीं है। कितने यहाँ पे, यहाँ में बताओ कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 2 है, और ये आगे भी 2 है, आखिर में 4। तो कितने हो गए टोटल यहाँ पे? 4। तो लेफ्ट साइड पे तो कितने? हमें दोनों तरफ बैलेंस करना है। हाँ तो दोनों साइडों पे इक्वल करना है ना। उसके बाद अच्छा, जितने तुम्हारे मैं पास, समझा कि मतलब जितने तुम्हारे पास स्टार्ट के अंदर पड़े हुए ना, उतने तुम्हारे पास एंड के अंदर होने चाहिए ना। सही है, सही, मैं समझा इंडिविजुअल बैलेंस करना। ना ना। अच्छा एक अब एक और इसका रिएक्शन कर लेते हैं। लेट्स से आई हैव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो एल्यूमिनियम इज +3 एंड हाइड्रोक्साइड इज OH -1। तो फॉर्मूला क्या होगा? Al and OH would be thrice, ठीक है। प्लस लेट्स से सल्फ्यूरिक एसिड है, तो दैट्स H2SO4। क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। सॉल्ट किस तरह बनेगी? H हटाना है, उसकी जगह एल्यूमिनियम आ जाएगा, तो इट वुड बी एल्यूमिनियम एंड SO4, ठीक है। ये आपकी सॉल्ट होगी। H की जगह एल्यूमिनियम आ गया। अब फॉर्मूला बनाओ इसका। एल्यूमिनियम +3 है, SO4 जो है वो -2 है, तो इट वुड बी Al2 एंड SO4 थ्राइस प्लस वाटर होगा, ठीक है। ये क्लियर है सारों को कि सॉल्ट किस तरह बनी है? कि H हटाना है, उसकी जगह जो मेटल का आयन है वो उसकी जगह ले आना है, ठीक है। दैट्स हाउ यू गोइंग टू गेट द सॉल्ट। जीनी, इज दिस क्लियर? मुझसे क्लियर है? जी Yes, सर। अच्छा, सो वर्किंग अपनी हटा देते हैं, चार्जेस हटा देते हैं, गायब कर देते हैं। अच्छा, नाउ बैलेंसिंग वाला पार्ट। अब मुझे कोई बताया कि सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, सल्फर, 4 एलिमेंट से किसको किसको पकड़ोगे बैलेंस करने के लिए? इन चारों में से किसको करोगे बैलेंस? रूल मैंने क्या बताया aluminum. कि सबसे आसान वाले को, जो सबसे कम जगहों पे आ रहा है। सो एल्यूमिनियम कितने यहाँ पे दिया? 2 एल्यूमिनियम्स, यहाँ पे एक ही है, तो इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ठीक है सारों की। अच्छा, एल्यूमिनियम हो गया बैलेंस, वो आसान था बैलेंस करना, बस आपने 2 करना था, ठीक है। दैट्स डन। अगला बताओ किसको बैलेंस करोगे? H, O और S को। सल्फर, सल्फर। ठीक है, सल्फर, क्योंकि H जो है ना वो 1 2 3 प्लेसेस में है। O जो है ना दैट्स इन 1 2 3 4 प्लेसेस, तो इन दोनों को बैलेंस करना मुश्किल है। कितने सल्फर है मुझे काउंट करके बताओ, कितने हैं यहाँ पे? 3। 3 है, ठीक है, क्योंकि S के साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ, तो S एक ही है। लेकिन ब्रैकेट के बाहर 3 लगा हुआ है, तो इसका मतलब है 3 सल्फर्स। यहाँ पे एक ही S है, ठीक है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। ये क्लियर है? फराज क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब सल्फर भी बैलेंस हो गया, आसान वाले बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किसको बैलेंस करना है? Hydrogen. हाइड्रोजन को करो, क्योंकि वो ज्यादा आसान है, ठीक है। सो इट्स हाउ मेनी हाइड्रोजन्स डू यू हैव ओवर हियर? 3। 3 ठीक है, लेकिन वो 2 मॉलिक्यूल, 9. Oh, sorry. तो 6 हो जाएंगे, 6 ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके पास 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, क्योंकि वैसे तो उसके पास 3 ही थे, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब 6 है। इधर एक मॉलिक्यूल में 2 थे, तो लेकिन 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये भी 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल हाइड्रोजन्स कितने हो गए? दे वुड बी 12 हाइड्रोजन्स। लेफ्ट साइड पे ना दे आर 12 हाइड्रोजन्स, तो राइट साइड पे भी 12 होने चाहिए। मुझे बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? Sir will multiply H2O by 6. ठीक है, मल्टीप्लाई दिस बाय 6, तो 12 हाइड्रोजन्स पूरे हो जाएंगे। और आखिरी, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, तो आखिरी जो है ना, द डिफिकल्ट वन,
वो खुद ही बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर अगर ये हाइड्रोजन ऑड नंबर होता मतलब 9 होता ना, फिर क्या 4.5 मैं दोनों लिखते? को मल्टीप्लाई कर दूं ना कि अगर लेट्स से ये तुम कह रहे हो ना कि यहाँ पे अगर लेट्स से कोई फॉर्मूला होता H3PO4 होता, राइट, और बस दूसरी साइड पे ना H2 बना होता, ठीक है। तो जी सर। फिर आप एक नंबर सोचो कि दोनों को मल्टीप्लाई करो इक्वल हो जाए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, और इसको 3 से 3 से। मतलब फॉर्मूला तो चेंज नहीं कर ठीक है। सकता ना, मतलब H3 को H3PO4 रहेगा सारी जिंदगी। तो फिर आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसी नंबर से। अच्छा एनीवेज, लास्ट जो ऑक्शन है वो खुद ही बैलेंस हो गया, वो काउंट करना शुरू करो। ऑक्शंस कितने हैं यहाँ पे? 4 है वैसे, लेकिन 3 मॉलिक्यूल, दैट्स 12। तो इधर देयर 12 ऑक्शंस। यहाँ पे कितने? 3 है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स हैं, सो दैट्स 6। तो टोटल कितने हो गए? 18। इधर SO4 थ्राइस है, इसका मतलब है 3 SO4s, तो दैट्स 12 ऑक्शंस। और वाटर मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन होता है, सो दैट्स 6 वाटर मॉलिक्यूल, सो दैट्स 6 ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो भी 18 है। तो जो सबसे मुश्किल होगा वो खुद ही बैलेंस होगा। इज दिस क्लियर? जी सर। मतलब उसको चेक कर लेना, अगर वो बैलेंस नहीं हो रहा ना खुद ही ऑटोमेटिकली, तो इसका मतलब है आपने इक्वेशन में ना कहीं कोई गलती की हुई है। अच्छा, सो लेट्स डू सोडियम विद फॉस्फोरिक एसिड, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बल्कि सोडियम ऑक्साइड करते हैं। ऑक्साइड प्लस phosphoric acid. Now sodium oxide, Na group 1, that's +1. Oxide का मतलब होता है कि खाली अकेला ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव आयन है। So this is +1, this is group 6, it's -2. So the formula is going to be Na2O plus I'm reacting it with phosphoric acid, and the result is going to be सॉल्ट के साथ बनेगी, H हटाओ उसकी जगह सोडियम आ जाएगा, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी NaNPO4, and Na is +1, PO4 is -3, तो formula would be Na3PO4 plus H2O, वाटर बनेगा, ठीक है। ये भी बेस प्लस एसिड है। सो दैट इज द सॉल्ट एंड वाटर दैट आर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, ठीक है। और बाकी काम है बैलेंस करना है। अब इसमें मुझे बताओ कि चार्जेस हटा देते हैं। अब इसमें मुझे बताओ कि इफ यू लुक एट, सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे? सोडियम को करो। अब वो देख लो, वो ऑड वाला इशू आ गया यहाँ पे कि ऑन वन साइड देयर आर 2 सोडियम्स, ऑन द अदर साइड देयर आर 3 सोडियम्स। दोनों को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इक्वल हो जाए? 3 और 2 सर। ठीक है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो नाउ योर सोडियम्स आर बैलेंस्ड, ठीक है। सोडियम इज डन। सोडियम के बाद किसको करोगे? पोटेशियम को किसको? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को कर सकते हो। उधर भी वही इशू आ रहा है, ये 3 है और ये 2 है। तो इसको जाके किससे मल्टीप्लाई करो कि यू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 और यू मल्टीप्लाई दैट बाय 3, ताकि दोनों साइडों पे 6 हो जाए, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज डन, दैट वाज आल्सो पेयरिंग इन 2 प्लेसेस। अब किसको करना है? कौन सा होगा एलिमेंट जो आसान होगा बैलेंस करना? मतलब फॉस्फोरस सिर्फ 2 जगहों पे है। हाँ ये सब फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस यहाँ पे भी एक ही फॉस्फोरस का कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो 2 फॉस्फोरस हो गए। यहाँ पे भी 2 फॉस्फोरस है, क्योंकि एक ही फॉस्फोरस है, मल्टीप्लाई बाय 2, दैट्स 2 फॉस्फोरस। तो वो भी हो गया, फिर आखिरी भी हो गया होगा। ऑक्सीजन काउंट करो, 3 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है, सो दैट्स अ टोटल ऑफ 11 ऑक्सीजन ओवर हियर। इधर कितने? 8
और 3 तो वो 11 ही बनते हैं, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब एक काम करना है कि मुझे इक्वेशन बना के दो कि ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड, अच्छा मैं इस उसके ऊपर ना टॉप के ऊपर आयंस की, ये पॉलीटॉमिक आयंस की और एसिड्स की लिस्ट लिखी हुई है, ठीक है। मैं साथ ही ना एक वो शीट भी सेंड करता हूँ जिसके ऊपर सारी डिटेल्स वगैरह वो मेंशन भी होंगी। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड मेक द इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। कैल्शियम मैं बता देता हूँ कि इट्स इन ग्रुप 2 और ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6 में होता है। नंबर 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Al is group 3. So number 3 is copper 2 hydroxide और बैलेंस भी करनी है। पहली इक्वेशन, जो भी इक्वेशन बने वो मुझे भेज दो। कॉपर का जो सिंबल होता है दैट्स Cu